ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم سیاست کے اوپر بات کر رہے تھے, ابھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ کی. ظاہر سی بات ہے ابھی ہمیں چیزیں اس طرح سے بہت سے جو آج کل کے جینزی ہیں ان کو تو معلومات ہے, لیکن جو پیرنٹس ہیں تھوڑی سی عمر زیادہ ہے ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کہاں کلک کرنا ہے اور کہاں کلک نہیں کرنا. بہت سی جگہوں پہ وہ کلک بھی کر لیتے ہیں اور ان کو کوئی کالز آتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں, اپنا او ٹی پی دیتے ہیں, وہ بھی دے بیٹھتے ہیں سم ٹائم. تو اس طرح کے جو اسکیمز ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں. لیکن جینزیز سے بھی آج کل بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. سم ٹائم ہم جاتے ہیں, ہمارا بینک اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے, کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں ہماری آئی ڈیز ہیک ہو جاتی ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ طرح کی پکچرز لگ جاتی ہیں جو ہمارے لیے بڑا پریشانی کا سبب بنتی ہیں. تو اس طرح کے جو سارے اسکیمز ہو رہے ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس سے دور کیسے رہا جا سکتا ہے, اپنی سیفٹی کو ہم کس طرح سے انشور کرا سکتے ہیں, آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ہم نے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے امتیاز علی کو, سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر. تھینک یو. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں آج کل ہم لوگ اس جنگل میں کیسے پھنس جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ایک کلک کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے اکاؤنٹ خالی. جی بہت شکریہ پہلے تو آپ کا مدعو کرنے کا. یہ بہت آج کا جو ہاٹ ٹاپکس ہیں چل رہے ہیں, سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل ورلڈ, وہ ایک بہت اہم ضرورت بن گئی. ہم دو زندگیاں جی رہے ہیں اب, ایک ہماری فزیکل لائف ہے, ایک ہماری ڈیجیٹل لائف, اور یہ زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے لوگوں, زیادہ امپیکٹ کیونکہ ہم زیادہ وقت ان ڈیجیٹل ڈیوائسز اور ان اکاؤنٹس کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں گزارتے, ویسے یہ بات سچ ہے. ایک روم میں بیٹھے ہوئے پھر بھی ہم ایک دو واٹس اپ کر رہے ہوں گے یا بات کر رہے ہوں گے. دوسرے روم سے کسی کو بلانا بھی ہوتا ہے تو ہم واٹس اپ کرتے ہیں کہ روم میں آ جائیں, بلایا نہیں جاتا. بلایا نہیں جاتا. تو ڈیجیٹل لائف اتنی زیادہ امپیکٹ کر گئی ہے. اب جب اتنی زیادہ امپیکٹ کر گئی تو جیسے عام زندگی میں مسائل آتے ہیں تو یہاں بھی وہ مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے اچھی بات کی, اصل جو ہے نا اویئرنیس کی وجہ سے زیادہ مسائل آتے ہیں. ہم چنگل میں اس لیے پھنس جاتے ہیں, یا تو ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی یا کچھ ہمیں لالچ دے دیا جاتا ہے. آپ کو انعام کال آیا, جی تو پاکستان سے, میں کبھی گیا بھی نہیں ہوں گا, آپ اتنا پیسے, جی وہ کتنے کالز تو مجھے آئی ہیں. شاید آپ تو گئی بھی ہو. اچھا پتہ کیا, مجھے تو, میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی. اب یونیورسٹی کے بچے کو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کس قسم کی کال کرنی ہے, تو مجھے کہنے لگے آپ کی کینیڈا کی اسکالرشپ لگی. میں بھی تھوڑی سی لالچ میں آ گئی کہ کینیڈا کی اسکالرشپ ہے, لیکن پھر میرا مائنڈ کام کر گیا کہ ان سے میں پوچھوں کہ میں نے اپلائی کب کیا تھا, ڈیٹا کون سا ہے, تو میں بہت زیادہ کوسچن کرنے لگی, وہ پھنس گئے. ورنہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی یہ چیزیں سینڈ کریں, آگے اپلائی کرنا ہے. اب اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں تو یہی آتا ہے کہ کینیڈا کی اپرچونٹی مل رہی ہے مجھے پڑھنے کی, پی ایچ ڈی کرنے کی, ایم فل کرنے کی, تو اسٹوڈنٹ تو بھاگتا ہوا جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, تو اس لالچ کی وجہ سے, یا جی تو پاکستان یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, یا سولر پہ آنا شروع ہو گئے ہیں, آپ کو کال آتی ہے اور کال پہ وہ ایسا ایسا کر کے آپ سے بات پوچھتا ہے, اور ایک آپ کے لیے کیو آر کوڈ جنریٹ کرے گا یا آپ کے لیے او ٹی پی جنریٹ کرے گا, اور لوگ آپ بتا دیں گے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کچھ ان کو سپورٹ نہ کریں آپ ہیک نہیں ہو سکتے. یہ جو بٹن دبانے والا وہ جب ہوگا جب آپ نے اس کو سپورٹ کی ہوگی. آپ اپنے ہاتھ سے اپنے تالے کی چابی اس کو دے دیں گے, دین کین اوپن دیٹ ون, ادروائز ہی نو چانس کے کریں. تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ تھوڑے سے کامن سینس استعمال کریں, جیسے آپ نے کر لی, سوال پوچھ لیے, اور آپ سیو ہو گئی, اور آپ نہ ہوتی تو وہ تھوڑی دیر بعد پروسیسنگ کے پیسے مانگ لیتا آپ سے, یو ہیو ٹو پیڈ. اور کینیڈا کا پتہ نہیں وہ کہاں لے کے جاتا ہے, بٹ آپ ہوتے تو دیٹس از کامن سینس امپورٹنٹ ہے. آپ لالچ میں آگے اپنا پاسورڈ, اپنا او ٹی پی کسی کو مت دیں. جب تک آپ سپورٹ نہیں کریں گے, کوئی کلک کر کے آپ کو لوٹ نہیں سکتا. دے نیڈ اس. اصل میں ہیکنگ سے زیادہ یہ آن لائن فراڈ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ہمارے دن میں سوشل انجینئرنگ کر کے, آپ کے اعتماد کو لے کے, یا آپ کو ڈرا کے, جی میں ایف آئی اے سے بات کر رہا ہوں, میں پولیس اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں, آپ کا بیٹا گرفتار ہوا ہوا, اس طرح سے آپ کو ڈرا کے وہ آپ سے پیسے لے لیے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے یہ ذکر کیا تو مجھے اپنی کزن کی ایک سٹوری یاد آ گئی. تو ان سے کسی کو کال آئی, انہوں نے کہا کہ میں ایس ایچ او بات کر رہا ہوں, تو جو آپ کا بیٹا ہے وہ اریسٹ ہو. اس نے کہا میری تو شادی ہی نہیں ہوئی بھی. لکلی وہ بچ گئی, ورنہ یہ بہت کامن ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو میرڈ خاتون ہوگی, والدہ ہوگی, تھوڑی سی ایج میں بھی بڑی ہوگی, تو اس کو کال جائے گی, وہ تو پریشان ہو جائے گی کہ میرا بیٹا اریسٹ ہوا ہوا ہے, کس چیز میں اریسٹ ہوا ہوا ہے, کیا ہوا ہوا ہے. تو وہ تو مانتے ہی جائیں گی جو بات وہ کرتے جائیں گے. اچھا یہ بھی بتائیں کہ سائبر کرائم اور آن لائن فراڈ میں کیا فرق ہے, یہ کیا ہے؟ جی اچھا سوال آپ کا. دیکھیے سائبر کرائم مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو آن لائن آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر رہا ہے.
अच्छा, दैट इज कॉल्ड क्राइम। जिस तरह से हम हैक करते हैं या इस तरह की बात। हैकिंग जरूरी नहीं है कि वो इलीगल हो, हैकिंग लीगल भी होती है। जैसे मैं एक एथिकल हैकर हूँ। एथिकल हैकर क्या है, आप बताएंगे कि जी मेरे टीवी स्टेशन में देखें क्या ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, तो मैं खुद भी सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, देखूंगा सर ये वीकनेस है, आपकी वल्नरेबिलिटी या वीकनेस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप किसी ताले फरोश को घर पे बुलाते हैं या मैकेनिक को बुलाते, देख लें यार मेरे घर के ताले मजबूत हैं, एवरीथिंग लॉक्स प्रॉपर है, दैट इज प्रॉपर। हैकिंग जब तक इलीगल नहीं होती, जब तक वो मर्जी के बगैर किसी को आप एक्सेस करते हैं और उसके अगेंस्ट आप उसकी रेपुटेशन या पैसे डिमांड करते हैं, दैट इज बिकम अ साइबर क्राइम बन जाता है ये आपका। सो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग साइबर हैकिंग से नहीं हो रहे, ऑनलाइन फ्रॉड से हो रहे हैं, क्योंकि आप खुद ओटीपी बता रहे हैं उसको। हाँ, आप अपने घर की चाबी खुद दे रहे हैं, तो वो आप वो नहीं है चोरी। पता क्या, आपकी मर्जी में कोई आपका ताला तोड़ देता है और आप चाबी खुद दे रहे हैं, वो दैट इज नॉट उस टाइप की वो हैकिंग है, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड है, आपके जज्बात इतमाद को फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, एक आम पाकिस्तानी अपने सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट्स को सेफ कैसे रख सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि एटीएम के बहुत से केसेस और चीज़ें आ रही होती हैं कि एटीएम लूट गया, कैसे लूटा ये नहीं पता चल रहा होता। यस, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कुछ गोल्डन रूल्स हैं, अगर आज उस पर फॉलो कर लें आप, तो आप 90% हैक आप हो नहीं सकते। नंबर 1, जितनी आपकी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं, मतलब उस पर होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। व्हाट्सएप बहुत कॉमन है और मेरे ख्याल यहाँ जितने लोग बैठे होंगे शायद 1% होगा जिन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर वो फीचर यूज़ किया है। आप अकाउंट में जाएं सेटिंग में, और 2 स्टेप क्या होगा, अगर आपका ओटीपी चला भी जाए फिर एक कोड और वो मांगेगा, अच्छा, जो आपने रखा होगा, तो एटलीस्ट हैकर आपसे वो कह ले, तो वो मतलब 1-2 ताले और लॉक से लगा दिए आप, तो वो नहीं होगा। एक तो हर डिवाइस, चाहे फेसबुक है, इंस्टा है, और बैंक में तो होती ही हैं आपके 2 ऑथेंटिकेशन, या तो ईमेल से पासवर्ड आएगा या आप खुद पासवर्ड लगाएंगे, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हर कोई कर ले, तो हैकर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। नंबर 1। नंबर 2, आप जब कुछ डाउनलोड करें तो हमेशा प्ले स्टोर से करें या ऐप स्टोर से करें। किसी शख्स के दिए हुए लिंक को क्लिक करके कुछ ही डाउनलोड ना करें। वो स्पाईवेयर हो सकता है, वो वॉर्मवेयर हो सकता है, आपका अकाउंट जो अगर 1 मिनट में चला जाता है वो इसलिए चला जाता है, आपने वो सॉफ्टवेयर किया, वो सारी आपकी रिकॉर्डिंग या आपकी चीज़ें उठा के आगे दे रहे हैं, तो आपके पास हैक हो जाते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसे फ्रेंड्स के उससे भी आए हुए होते हैं लिंक, और हम समझ रहे होते हैं कि भाई लिंक हमारे किसी दोस्त ने भेजा है और बहुत अच्छा बॉन्ड है, पुराना है, जानते हैं, अब हमें मालूम नहीं होता कि उधर से उनका भी हैक हो चुका है। और बहुत से ऐसे भी केसेस आते हैं कि फ़ॉरेन में बैठे हुए लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको कोई यहाँ से रिश्तेदार की कॉल जाती है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, और नंबर भी उन्हीं का जा रहा होता है। यस, जब आपका व्हाट्सएप वगैरह हैक कर लेते हैं वो, तो फिर वो आपके कॉन्टैक्ट से पैसे मांगने के लिए वो करते हैं। पहले तो आप उसको अर्जेंसी भी बहुत होती है, वो फ़ौरन मांगेगा, मैं मुश्किल में फंसा हूँ, मुझे पैसे दो। आपको टाइम सोचने का नहीं देगा, तो बेहतर है कि आप उसको किसी दूसरे फ़ोन से किसी कंफर्म करें कि यार ये बंदा वाकई ऐसी जेन्युइन चीज़ है या नहीं है। अगर वो कंफर्म करें, लोग फ़ौरन पैसे देने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे मैसेज आया गया, अगर मैं आप मुझ पर टच करती हैं, आपके ठीक है जी, इम्तियाज़ ने तो मांगे नहीं कि अभी आज वो दे रहा है तो मैं आप दे दूँ, और आप दे देती है। तो आप पहले कंफर्म करें, खुद फ़ोन करके उसे कंफर्म करें कि आपने डिमांड की है या नहीं की। ये सिर्फ वो मैसेज आया हुआ है, तो डेफिनेट। और जिसका हैक हो जाए उसे चाहिए किसी अकाउंट से लोगों को बता दे अपने कॉन्टैक्ट्स को। लोग फेसबुक अकाउंट भी ऐसे हैक कर रहे हैं, आपकी तस्वीर लगा के, तो वो हैक कर लेते हैं। वो समझते लोग ये तो जो है हमारे पास फेसबुक तो बहुत कॉमन हो गया है। फेसबुक के ऊपर तो पता नहीं कितनी आईडीज बन जाती हैं, रिपोर्ट कर करके भी इंसान थक जाता है, इतनी आईडीज बन जाती हैं। तो वो वहाँ पे क्या, वेरिफिकेशन जरूरी है। वेरिफिकेशन सुन के अमल करना मत करें, वेरीफाइड करें कि ये रिपोर्ट ठीक है या ये बात गलत है, अदरवाइज फिर आप मुश्किल। अच्छा, जो वैसे आपका रिश्तेदार बन के बात कर रहा होता है, वो ज्यादातर कर भी मैसेजेस पे रहा होता है, फोन कॉल से ज्यादातर मेजोरिटी घबराती है। अगर उनको कॉल की जाए तो वो कॉल नहीं पिक करते, मैं मसरूफ हूँ या किसी ऐसी जगह पे फंसा हुआ हूँ, इस तरह के जवाब आते हैं, ताकि आप अवॉइड करता है उसको, और फिर कहता मुझे अभी दे दो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, मैं अभी पैसे आपको वापस करता हूँ, मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, इस तरह की चीज़ करके। वो अमाउंट इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, तो लोग दे देते हैं, लोग फिर कंप्लेन भी नहीं करते। अभी गवर्नमेंट बता रही है कि 2 लाख से ज़्यादा पिछले साल इम्पैक्ट हुआ है, जिन्होंने सिर्फ रिपोर्ट किया। मेरे ख्याल केस इससे भी ज़्यादा का है। तो ये हमें लोगों को चाहिए, अवेयरनेस की ज़रूरत है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये डिजिटल चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाएगी। लोग अपने अकाउंट नहीं खोलते, अब कहते हैं, डरते हैं लोग कि भाई हम तो मतलब अकाउंट ही कोई लूट जाएगा। तो इस तरह लोग अपने बिजनेस को भी इफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जाहिर सी बात है, टेंशन होती है, मेहनत की कमाई होती है, इतनी आसानी से तो चीज़ें नहीं बनाई जाती, ये एक दिन की बात नहीं होती, और इतनी मेहनत सालों की वो एक ही दिन में कुछ सेकंड में ही खाली हो जाए तो इंसान को जाहिर सी बात है स्ट्रेस भी होती है, टेंशन भी होती है। अच्छा, साथ में ये भी बताएं, अक्सर हम
किसी भी जगह जाते हैं हम कहते हैं वाईफाई कनेक्ट करते हैं, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम किसी भी जगह से ले लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। अब ज़रूरत भी होता है उस टाइम इंसान, क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि सारे काम ही उसी के ऊपर हो रहे होते हैं। तो उससे क्या चांसेस हैं कि हमें सिक्योरिटी खतरात हो सकते हैं? ये जो पब्लिक वाईफाई होते हैं, एयरपोर्ट्स, कैफेज जाते हैं आप और आप कनेक्ट कर लेते हैं, तो पहले ये नसीहत है कि जब आप इस तरह की जगह पे जाएं या फ्री पासवर्ड आपको ये मिल रहा है वाईफाई, आप कोई ट्रांजैक्शन मत करें एटलीस्ट। अच्छा, जब आप करेंगे हो सकता है वो हैकर भी उस नेटवर्क से कनेक्ट होगा, क्योंकि पासवर्ड तो कुछ लगा नहीं, ओपन वेब सबके लिए, और वो ट्रैफिक अपनी डाइवर्ट कर लेता है और आपके सारे स्कैन करता है, आपको इंस्पेक्शन कर लेता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अब आ गए जो आराम से आपको ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। तो आपने पब्लिक प्लेसेस वाईफाई पे कभी भी अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करनी ये देना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पब्लिक प्लेसेस पे हम अक्सर करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, और मोस्टली लोग आजकल कैश नहीं रखते, वहीं से ही ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ से हम ना करें? वहाँ से ना करें, ब्राउजिंग हद तक ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत ज़रूरी हो, अदरवाइज अपने डाटा से करें, क्योंकि अगर हैकर उसका कनेक्ट हुआ है तो वो आपकी स्कैनिंग करेगा सारी और आपको पता भी नहीं लगेगा, और ये बहुत कॉमन हो रहा है आजकल। अच्छा, ये तो बड़ा ख़तरनाक है। हम अक्सर, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, बहुत से लोग और भी इस्तेमाल करते हैं। रेस्टोरेंट जाएं या किसी और सैलून में जाएं, हम उनका वाईफाई यूज़ करते हैं, वहीं से हम पैसे भेज रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं, ये बैंक के नाम पे आने वाले जो फर्जी कॉल्स हैं, OTPs हैं, हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बैंक की कॉल नहीं है, ये हमें ऐसे ही कॉल की जा रही है? अक्सर तो मैंने, अब बूढ़ों को इतने स्कैम्स हो चुके हैं उनके साथ, अब मैं ये देख रही होती हूँ वो गुस्सा कर रहे होते हैं। अगर बैंक से कॉल आई भी होती है तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने बैंक आके बताना है, हमने कॉल पे नहीं बताना, बात ही खत्म कर देते हैं। लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, सही बात है। और ये बहुत सारा स्कैम पाकिस्तान में हुआ है कि जी बैंक का आपका कार्ड बदल गया है, नया कार्ड आपने एक्टिविटी नहीं करवाया, ये कोड मुझे बता दें। देखिए, दो चीज़ें हम याद रखें, हमने OTP किसी को नहीं देना, अच्छा, और पिन नंबर नहीं देना। अगर दो चीज़ें ना दे, चाहे वो जो मर्जी कह दे आपको, इसके लिए आप बैंक वाले भी नहीं मांगेंगे आपसे इवन। अच्छा, बैंक वाले भी नहीं मांगेंगे। ये दो चीज़ें सिर्फ आपकी पर्सनल हैं, आप कभी शेयर ना करें। चेंज भी आप करते हैं, खुद चेंज करेंगे आप, कोई आपको उसमें नहीं करता। हमने तो अपने लिखा भी होता है, घरों में बताया भी होता है, हमारे बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, उनको भी हमारे पापा का पिन का पता होता है, वो उसी दौरान वो भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। OTP और पासवर्ड जो भी है वो आपने बिल्कुल भी फ़ोन पे, बैंक वाले भी आपसे नहीं पूछेंगे, आपने बिल्कुल शेयर नहीं करना। अगर आपको कुछ ऐसा लग भी रहा है तो कोशिश करें 1 दिन में, 2 दिन में बैंक विजिट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि कॉल के ऊपर आप किसी को भी इंफॉर्मेशन दे दें। नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ऑनलाइन जो स्कैम होते हैं उनके ऊपर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। सिर्फ बैंक अकाउंट्स खाली नहीं होते, हमारे अकाउंट्स भी हैक हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि ख़वातीन जो होती हैं वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही होती हैं, और उसके लिए उनको क्या किस कानूनन तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस इदारे की तरफ जाना चाहिए, इस पर हम पूछेंगे। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि ख़वातीन भी बड़ा एक किस्म का ब्लैकमेल हो रही होती हैं, बेचारी बता भी नहीं सकती, परेशान भी होती हैं। अगर बताएंगे तो लोग कहेंगे क्यों इस्तेमाल की थी ऐप, एक रिस्पॉन्ड यही होता है। हालांकि जुर्म से नफ़रत करनी चाहिए, किसी भी इंसान से हो सकता है। ये नहीं होता कि किसी से अगर हो गया तो हम उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें कि आपने वो काम शुरू ही क्यों किया था। आप दुनिया में आए हैं, ख़तरात भी होते हैं, उनसे भी निमटना पड़ता है। तो ये चीज़ें खातून के साथ भी हो सकती हैं, मर्द के साथ भी हो सकती हैं। क्रिटिसाइज़ ना किया करें, सोल्यूशन की तरफ जाया करें। अच्छा, तो क्या कर सकती हैं ख़वातीन, कानूनन कौन सा रास्ता अख्तियार कर सकती हैं? अक्सर बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग का शिकार होती हैं। जी, अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे नए कानून पास किए हैं। सबसे पहले तो एक स्पेशल इंस्टीट्यूट बना दिया गया है जो NCCA आपका, नेशनल सिक्योरिटी आपका साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मौजूद है, और हेल्पलाइन बनाई हुई है 1799। आप फ़ौरन कॉल करें, 1799 हेल्पलाइन है, फ़ौरन कॉल करें, वो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं आपके पास और उसकी सारा डिटेल निकालते हैं। जो भी डिटेल आपसे वो मांगेंगे आप उनको दें और वो वेरी जल्दी करते उसको पकड़ते हैं। और लास्ट टाइम उन्होंने काफ़ी 24,000 से ज़्यादा केसेस को सॉल्व किया है। तो नंबर 1। फिर FIA है,
PTA है जहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप फ़ौरन इसको रिपोर्ट करें, इसको छुपाएं मत, जैसे आप कह रही छुपाने से उनका हौसला बढ़ रहा है। उनका हौसला बढ़ रहा है, डेफिनेटली। ये ऐसे होता है कि अगर आप एक जुर्म को बढ़ा रहे हैं, अगर आप खामोश हैं तो उनको लगता है ये नहीं कर पा रहे तो अगला इंसान भी नहीं कर, एक्शन लें, रिपोर्ट करें कि ताकि ऐसे जो अनासिर हैं उनका खात्मा हो। अच्छा, साथ में ये भी बताएं कि जो लाहौर FIA में लड़कियों की जानिब से कोई लड़कों के वीडियोस के ज़रिए ब्लैकमेलिंग और इस तरह की दरख्वास्तें, केसेस दर्ज हुए, उस पर क्या ये वजूहात क्या थी, क्या इसके पीछे था, ये भी थोड़ा सा शेयर करें। देखें, वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी वैसे इन्वेस्टिगेशन में जा भी रहा है। होता ये है कि चाहे ये जेंडर्स का फ़र्क हटा दें हम, तो फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल। ज़्यादा वुमेन बनती हैं हमें पता है, लेकिन कहीं कभी मर्द भी बेचारा इस विक्टिमाइज का हिस्सा बन रहा होता है। तो सबसे हल अच्छा ये है कि देखिए, डिजिटल आपकी आइडेंटिटी है, इसको सेव करना आपकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी है। आप फेसबुक पे हैक होते हैं तो फेसबुक ने अपना एक ऑफिशियल पेज बनाया जिस पे जाके आप रिकवरी कर सकते हैं, लोगों को नहीं पता होता। facebook.com/hacked, वहाँ जाएं, ओरिजिनल अपना डाटा दें, वो आपसे रिकवर करवा लेंगे। आप फ़ौरन अपना डाटा रिकवरी की तरफ जाएं अकाउंट्स पे, ये ना कि आप वेट करें और लॉन्ग वेट करें, उससे आपकी रेपुटेशन डैमेज होती है। आपको पता है अब AI की वजह से वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। मैं चाहूँ तो आपकी सेम आवाज़ क्रिएट करके लोगों को फ़ोन करवा सकता हूँ, जैसे वॉइस क्लोनिंग कहते हैं। हाँ, वो लगेगा कि जो जिस तरह जो बलोची बात कर रही हैं वो पैसे मांग रही हैं, वो लगेगा कि हाँ बिल्कुल जेन्युइन बात है। या आपकी वीडियो बनाऊँ, फेक डी वीडियोज़ आ गई हैं जो बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लमेटिक बढ़ती है। तो देखिए, जब भी आप विक्टिम हो, आपको रिपोर्ट करना है, आपको अपने पासवर्ड को कंट्रोल में रखना है। पासवर्ड लेंथी होते हैं, बड़ी सबसे गलती है वीक पासवर्ड्स, जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या होता है, मैंने जब जितने लोगों से बात किया है ना, तो उनका कहना होता है कि इतनी ऐप्स हैं, इतने अकाउंट्स हैं, कितने पासवर्ड याद रखें, भूल जाते हैं। स्ट्रांग पासवर्ड रखना आसान थोड़ा सा रखते हैं तो हमें याद रहता है, वहीं से वो मार खा जाते हैं। ये ऐसी ही आप पूरे घर की एक ही चाबी बनवा लें, अगर चोर को एक हाथ मिल जाए तो सारे रूम्स आराम से खोल लें आपके लिए। मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन आपको करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, देखें, तो उन चोरों के लिए भी आसानी पैदा कर रहे हैं। टू सेव पासवर्ड एटलीस्ट 12 से 15 डिजिट्स का रखें, लॉन्ग पासवर्ड रखें, और अपनी फैमिली के नाम पे मत रखें, क्योंकि हैकर आपके अराउंड भी होता है, उसको पता है इनकी मदर नेम ये है, फादर नेम है, हो सकता है करीब में से भी हो। जो नहीं हैकर बाहर से आता है, वो इंटरनल भी होते हैं, चोर घर में भी होता है, कहते हैं। तो कोशिश करें कि मुश्किल पासवर्ड रखें, उनको सेव रखें, और उनको किसी को शेयर ना करें किसी और के साथ, और ये चीज़ें करें तो इंशाल्लाह फिर आप सेव रहेंगे। अच्छा, दूसरा जाहिर सी बात है, AI आ गई है। AI का इस्तेमाल तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ लोग तो ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि इंसान अपने ऊपर कंट्रोल खोता जा रहा है और AI हासिल करती जा रही है। अच्छा, तो AI के आने से नए ख़तरात कौन कौन से आ गए हैं कि जिससे हम फ्यूचर में अवेयर रहें कि इनसे बचना है अब? जी, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि वॉइस क्लोनिंग ऐसा मसला है कि आप जैसी आवाज़ प्रोड्यूस करता है। अब कॉल पे भी भरोसा ना करें, पहले तो मैसेज करते थे, अब कॉल भी कर सकते हैं। आइडिया जैसे आप ना, कई लोग किसी लोगों की नकलें उतार लेते हैं, जैसे बहुत से लोग फिल्मी अदाकारों को मेमोरी कर लेते हैं। इस तरह AI भी आपकी आवाज़ को कॉपी करता है, आपके पैटर्न को, और उस तरह से बनाता है, और वीडियो भी बनाता है। आसान तरीका ये है, जब आप ये तो एक्स्ट्रा आप अपनी वीडियोस और लंबे मैसेजेस और वीडियोस ज़्यादा शेयर मत करें हर जगह के ऊपर, कुछ चीज़ को प्राइवेट रहने दें, ठीक है। और दूसरी बात, जिसको शेयर करें, आप मैसेज फॉरवर्ड ना करें लोगों के आगे। आपने मुझे एक मैसेज किया, मैंने कहा देखें ये मैसेज उन्होंने मुझे किया, वो मैसेज जाता जाता आगे चला जाता है, और वो ऐसे लोगों के हाथ में जाता है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना आपको प्रोटेक्शन पर्सनल रखेंगे, लाइफ को प्राइवेट रख सकते हैं, उतना ज़रूर रखें, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। अच्छा, आजकल प्राइवेट क्या, आजकल तो मेरे ख्याल में हम चाय भी पीते हैं उसको भी पोस्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ट्रेंड ही ऐसा बना हुआ है ना, सभी उसी के पीछे ही चल रहे हैं, जो खा रहे हैं उसको पोस्ट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं वो कहते हैं कि एक, अब ये तो वैसे मीम ही बनी हुई है कि आई एम ट्रैवलिंग फलां फलां, उसने पोस्ट किया तो वो पीछे घर में चोरी हो गई, तो उन्होंने कहा, चोर से पूछा कि आपको कैसे पता चला, उसने कहा आपने स्टेटस लगाया हुआ था ना कि आप घर पे नहीं है, तो इसलिए मैंने चोरी कर ली। हमें अपनी ऑफिशियल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखना है। आप ऑफिशियल लाइफ को पब्लिश कर सकती हैं किसी हद तक, लेकिन पर्सनल लाइफ को मत करें। अपनी फैमिलीज की इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, आप सालगिरह मना रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, आप अपना इवेंट प्लान कर पहले बता रहे हैं कि उस दिन में यहाँ होना है, तो पीपल हैज जजिंग यू कि भाई ये चीज़ें सारी हो रही है, तो इससे मत करें। हर चीज़ शेयर करने वाली नहीं भी होती, हर चीज़ शेयर करने वाली नहीं भी होती। ख्याल रखा करें, कोशिश किया करें, कम से कम इंफॉर्मेशन को शेयर किया करें। पता नहीं क्यों हम एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं कि जो चीज़ हम खाते हैं, जहाँ जाते हैं, अगर हम वो पोस्ट ना करें तो हम रह नहीं सकते। और दूसरा ये कि
ہر انسان پھر کمپیریزن میں بھی آ رہا ہے کہ اس نے پوسٹ کیا ہے تو میں نے بھی پوسٹ کیا، اور وہ جو کچھ سیکنڈ ہوتے ہیں وہ بڑی ہم نے بیوٹیفل پکچر دکھائی ہوئی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کی پکچر ہم نے نہیں دیکھی ہوئی ہوتی کہ کیا ہے کیا نہیں۔ اچھا، ہمارے نوجوانوں کے لیے آپ کیا ایسا کوئی میسج دیں کہ جس طرح سے آج کل کے اسکیمز ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، ان سے وہ بچ سکیں؟ جی، ایک تو سائبر سیکورٹی کو سب کو سیکھنا لازمی ہے۔ ہم ایک ڈیجیٹل روڈ پہ چلتے ہیں، وہاں ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ چوری ہو سکتی ہے، آپ کو سیکھیں سارے۔ یہ صرف آئی ٹی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ایوری ون رسپانسبلٹی، ہم سب کی۔ ایک دوسرے کو آگاہی دیں اور چیزیں کوشش کریں کہ آپ اپنی چیز کو اتھینٹیکیٹ رکھیں، پاس ورڈ سے لے کے URL سے لے کے، فضول آپ کو کوئی لالچ دیتا ہے اس لالچ پہ مت جائیں۔ کلک کیجئے جی آپ اتنے پیسے جیت جائیں گے، آج گیم کھیل کے آپ کل کروڑ پتی ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ الٹا جو آپ کے پاس چند پڑے سکے پڑے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کھو بیٹھتے ہیں۔ تو ایک تو سائبر سیکورٹی کو، اچھا دوسری بات اس کے پازیٹیو سائڈ، اس میں جابس بھی آ رہی ہیں، اب سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ ہائر کیے جاتے ہیں، اور پاکستان کے ماشاءاللہ ایتھیکل ہیکر اور باقی بہت اچھے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ اور اب آپ تو پتہ وار بھی ہوتی ہے تو سائبر وار ہوتی ہے۔ ہاں، ہم انڈیا کے چینلز کو ٹرائی کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ اب دنیا میں ہوتا ہے، اور باہر کے ملک اب ہائر کر رہے ہیں پاکستانی، تو آپ اس کو ایز اے پازیٹیو لرننگ کے طور پہ سیکھیں اور اپنے ملک کا بھی فائدہ کریں اور اپنی جابس کو بھی بنائیں، سرٹیفکیشنز کریں، پازیٹیو رہیں اور آگاہی کریں، تو انشاءاللہ اس میں آگے فیوچر آپ کا سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل آپ کی ورلڈ کے اوپر جڑا ہوا ہے، ورڈ کے اوپر جڑا ہوا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ضرور کہوں گی کہ خواتین کے لیے اسپیسیفک مینشن کریں، کیونکہ خواتین کو بہت زیادہ مسائل آتے ہیں اور بہت جلدی گھبرا بھی جاتی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی بتائیں کہ ان کو کون کون سے سیفٹی میئرز لینے چاہیے کہ اس قسم کے اسکیمز، فراڈ سے وہ بچ سکیں۔ جی۔ فیمیلس کے لیے 7 گولڈن رولز ہوتے ہیں سائبر سیکورٹی کے۔ نمبر 1، پاس ورڈ اسٹرانگ ہوگا۔ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آپ ہر اپنی ایپ پہ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ جب ایپ انسٹال کریں تو ہمیشہ پلے اسٹور یا جو بھی مسند چیز ہے اس سے کریں، کسی URL کو شیئر نہ کریں، اپنے اینڈرائڈ فون کو اپ ڈیٹ رکھیں، جو بھی سیکورٹی فیچرز ہیں اس کو انبٹ نہ چھوڑیں، اینٹی وائرس ہونا چاہیے آپ کے سسٹم میں، یہ سیو ہے۔ دوسرا، جو بچوں کو آپ موبائل دیتے ہیں اور آپ کچن میں ہوتی ہیں اور وہ بچوں کو دیکھیں گے، وہ ان پہ پیرنٹ کنٹرول لگائیں۔ اب آپ کے گوگل نے آپ کو بڑا اچھا آپشن دیا ہے، آپ بچے کی اسکرین ٹائمنگ کنٹرول کریں اور پرمیشن لگا دیں، آپ کی مرضی کے بغیر وہ کسی چیٹ نہ کر سکے اور کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کر لیں۔ لوگ اپنی جلدی میں بچوں کو دے جاتے ہیں اور گیم کے دوران ہیکرز سے چیٹ کرتے ہیں، آپ کی ساری انفارمیشن ان سے لے لیتے ہیں، اور ماں بچوں کی بات چیت بھی نہیں ہو پاتی، اس کو یہ نہیں پتا کیا ہوا، پھر اچانک پتہ لگتا ہے کہ میرے تو جائز کیش میں پیسے نہیں رہے، اور بچے کو مار پڑ رہی ہوتی ہے۔ بچے اس کو کنٹرول کرنے کی، بچوں کو آپ دیتے ہیں، ایک سروے کے مطابق ہمارے 10 سال کے بچے پہ پاکستان میں 50% لوگوں کے پاس موبائل ہے اب، تو ہماری نیکسٹ جنریشنز مور رسک، اور یہ آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں ہیکرز کے لیے۔ ان کو لالچ دیا کہ بیٹا آپ کو اتنے پوائنٹس ملیں گے گیم میں، وہ دے ول کلک ایوری لنک، اور وہ آپ کے لیے پلیز اپنے بچوں پہ نظر رکھیں ایکٹیویٹیز پہ۔ پلیز نظر رکھیں، کوشش کریں کہ فون جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس میں جو بھی لنکس آتے ہیں ان کو بلا وجہ کلک نہ کریں، کہیں آپ کی انفارمیشن نہ چلی جائے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہم اکثر غلطی کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں پبلک پلیسز پہ جو ہم وائی فائی استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال نہ کریں، کوشش کریں اپنے فون پر استعمال کریں۔ اگر آپ چند پیسے خرچ کر کے اتنے زیادہ پیسے ضائع نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ آپشن زیادہ بہتر ہے، اپنے سے بچائیں، تھوڑے سے پیسے اپنے پیکج پہ ہی خرچ کر لیں۔ ناظرین، ابھی ہم جاتے ہیں بریک پہ۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمان کا آپ سے تعارف کروائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔